میرے نزدیک یہ ایک درسگاہ تھی، لیکن زیادہ تر جو یہاں پر آئے پھر انہوں نے باقاعدہ بڑے بڑے اپنے پورے خاندانوں تک انہوں نے حکومت کی یہاں پر۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ یہ جو مذہب کا تھوڑا بہت لنک جو تھا نا ہندوازم سے بھی تھا نا۔ یہ جو پورشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک وسیع ایک ایریا ہے، اور میرے نزدیک یہ ایک درسگاہ تھی۔ اور درسگاہ سے مراد یہ کہ یہاں پہ مذہب بھی سکھایا جاتا تھا، آرٹ بھی سکھایا جاتا تھا، میڈیسن بھی سکھایا جاتا تھا، یہاں پہ بہت سارے شعبے تھے۔ اور یہاں پر جو آپ یہ استوپا دیکھ رہے ہیں، استوپا تو خیر مین ہر جگہ ہوتا تھا کیونکہ اس کے تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو مذہبی علوم تھا یہ بہت ضروری ہوا کرتا تھا، اس کے ساتھ اٹیچ تھا یہ۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ایک استوپا ہے بڑا، اور جیسے کہ بہت سارے ادوار گزرے تو اس میں کسی دور میں یہ بنا، ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ سینچری میں بنا، یا ہو سکتا ہے سیکنڈ سینچری اے ڈی میں بنا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مختلف ادوار میں مختلف یہاں پہ استوپا ہیں، اور یہاں پر جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف یہ موناسٹری ہے اس کی۔ تو اب ادھر بھی آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی ایک ووٹیو استوپا ہے، یادگاری استوپا جسے کہتے ہیں، اور پیچھے وہی بن ہے اسی طرح سے۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹ تھے یہاں رہتے تھے، کھاتے بھی یہی تھے، اور اپنے عبادت بھی کرتے تھے، اور سارا کام یہی کیا کرتے تھے۔ اچھا اگین اس میں دیکھیں یہاں پر جو پتھر لگا ہوا ہے، کنجور کا پتھر لگا ہوا ہے، یہ آپ کا سشت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مختلف ادوار میں یہ چیزیں بنتی جی جی آپ یہ دیکھیں کتنا فائن ہے، اس کی کنسٹرکشن کتنی فائن ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، یہ دیوار دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنا ایک لیٹسٹ ٹائپ ہے اس کے مقابلے میں، اور بڑے بڑے ڈریسڈ پتھر کے ساتھ جو پتھر فکس ہوئے ہیں یہ بھی کتنی زبردست طریقے سے کٹے ہوئے ہیں۔ ورنہ پہلے ہوتا تھا کہ چولہا اٹھا کے جو ہوتا تھا ڈیبری اس سے فٹنگ کی جاتی تھی، لیکن یہاں باقاعدہ اس کو فکس کرنے والے پتھر بھی جو ہے نا وہ تراشے ہوئے ہیں سارے۔ تو یہ یہاں پہ آپ کو ایک دور ترقی یافتہ دور صاف نظر آتا ہے۔ تو میرے دیکھنے والے یہ دیکھیں کہ یہ ایک دھرما راجی کا جو سائٹ ہے یہ ایک بہت بڑی سائٹ ہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہوگا، جب بھی جو بھی دنیا سے، رومن سے، گریک سے لوگ آتے ہوں گے تو وہ یہاں پر آ کر ٹھہرتے ہوں گے، عبادت کرتے ہوں گے، تعلیم حاصل کرتے ہوں گے، پھر یا تو واپس جاتے ہوں گے یا آگے جاتے ہوں گے۔ اسی طرح جو انویڈرز آتے ہوں گے وہ بھی یہاں پر ضرور آتے ہوں گے۔ یہ ایک ان کی توجہ کا اور ان کی علم اور روحانیت کا ایک بہت بڑا مرکز ہوگا، اشوک کے بعد سے لے کر جتنے 5ویں صدی تک، جب تک اس کے آثار ختم نہیں ہوں گے۔ اس میں سر جو مختلف ادوار میں مختلف انویڈرز آتے رہے، انہوں نے آ کر اس جو اسٹوپا ہے یا جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں مطلب اس وقت کی، اس کی حسن میں اور اس کی افادت میں اضافہ کرتے رہے، یا اس کو خراب کر کے اپنا مذہب امپوز کرنے کی کوشش کرتے رہے؟ آپ نے بڑا مزے کا سوال کیا۔ دیکھیں اس زمانے میں جو چونکہ بڑا خوشحال علاقہ تھا یہ، کہتے ہیں نا اس زمانے کے یہ سنگاپور اور نیو یارک سے، تو وہاں پہ جو لوگ آتے تھے یہاں پر اس کو قبضہ کرنے کے لیے آتے تھے، یہاں پہ لوٹ مار کرنے کے لیے، وہ بھی ہوگا، لیکن زیادہ تر جو یہاں پر آئے پھر انہوں نے باقاعدہ بڑے بڑے اپنے پورے خاندانوں تک انہوں نے حکومت کی یہاں پر، اور لیکن انہوں نے اس مذہب کو نہیں چھیڑا، اچھا، اور اپنے آپ کو ڈھال لیا اس مذہب میں، چونکہ ایک بڑا ہی پرامن مذہب تھا، وہ لوگ بھی مرعوب ہو گئے اس سے، اور انہوں نے پھر آ کر کے امینڈمنٹ کی۔ مثال کے طور پہ ہم پیچھے جو دیکھ کے آ رہے ہیں، اور اس میں جو ہم آپ کی تعمیرات کا جو طریقہ کار ہے تبدیل ہوتا نظر آتا ہے، وہاں شروع میں کچھ اور تھا، یہاں پہ کچھ اور ہے، تو یہ لوگ آخر تک جو ہے نا یہ اپنے آپ کو ڈھال لیا اس مذہب کے اندر، اور بڑی ترقی اور خوشحالی جو بھی آیا اس نے کی، اور لیکن اور یہ جو بعد میں جو آئے تھے آخر میں جو وائٹ ہاؤس آئے تھے،
वो लोग एक्चुअली वो लूट मार करने आए थे, वो यहाँ नहीं, वो सारी दुनिया में फिरते थे लूट मार के लिए। और जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा एक जबरदस्त एक ये शहर है, तो उन्होंने फिर इधर का रुख किया, पहाड़ से उतर करके यहाँ पहुँच गए। अच्छा, यही वजह है कि हमें जिस तरह सिरकप में भी हमने देखा कि वहाँ पर जैन मज़हब की इबादत गाह, हिंदू मज़हब की इबादत गाह, बुद्ध मत की इबादत गाह, तो इस तरह से जो वो आते थे तो वो अपना मज़हब भी नहीं छोड़ते थे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग मज़हब है, एग्जिस्टिंग सकाफत है, उसको भी वो तहे तैग नहीं करते थे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, ये हमारे सीखने के लिए भी है कि हमें भी चाहिए कि हम हर मज़हब का, हर सकाफत का, हर इंसान का एहतराम करें बेसिकली, क्योंकि ये मज़हब जितने भी हैं, ये मज़हब हमेशा जो है वो अच्छे की तालीम देते हैं। जिस तरह बुद्धा की भी अच्छाई की तालीमात हैं, तो हमें उन सबके मज़ाहिब की, ये हमारा इस्लाम भी हमें सिखाता है सर कि बिल्कुल किसी आप मज़हब को, किसी के खुदा को गाली न दें, ताकि अगर आप उसके खुदा को गाली देंगे तो वो आपके सच्चे खुदा को भी उसकी गुस्ताखी करेगा। तो ये हमारे मज़हब की भी यही तालीम है। देखें, हम हमारे अपने झंडे के अंदर जो वाइट है वो उनकी आज़ादी है, जो माइनॉरिटी जिसे हम कहते हैं, हालांकि माइनॉरिटी नहीं है, वो भी पाकिस्तानी है। बिल्कुल। तो हमें माइनॉरिटी का लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी एक झंडे के अंदर एक छोटी सी निशानी है। तो ये तो वो जो सिक्का आपने देखा, उसमें जो मुख्तलिफ मज़हब की जो मिले हैं, इसका मतलब ये था कि कितने मिलजुल कर रहते थे वो लोग। देखिए सर, रहने के लिए ना, मेरे ख्याल है ज़िंदगी गुजारने के लिए जो एक सबसे अहम चीज़ है ना, वो है अमन, सुकून, आश्ती। बिल्कुल। तो अगर आप मुख्तलिफ मज़ाहिब को जगह देते हैं, मुख्तलिफ नज़रियात को जगह देते हैं, इख्तलाफात को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, इख्तलाफ को इंतशार नहीं बनाते, तो आप ज़िंदगी को सही तरीके से इंजॉय करते हैं और आसान करते हैं। और उससे फिर जो आपका एक माशरा वजूद में आता है, वो बड़ा आइडियल माशरा होता है, जिसमें हर कोई अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजार सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये बड़ी नेमत से नवाजा कि एक इतने बड़े मज़हब का मरकज़ ये हमारा ख़िता रहा। और अगर मेरा ख्याल है कि ये कुछ छठा बड़ा मज़हब है दुनिया का, बुद्धिज़्म, ऐसे ही सर? असल में हम चाहते हैं कि रिलीजियस टूरिज़्म डेवलप हो, उसको हम प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कई इक़दाम उठाए, और थाईलैंड, श्रीलंका और मुख्तलिफ बुद्धिस्ट ममालिक के लोगों को बुलाया यहाँ पर। सही। और बाकायदा उनको सफारती लेवल पर उनको दावत दी, और वो लोग जहाँ पर आए और उनका एहतमाम कराया गया कि वो यहाँ पर आकर इबादत करें अपनी ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइट है धर्मराजी का। तो यहाँ पर फिर वो एक वफ्द आया बाकायदा, और हमारा पूरा जो मिनिस्ट्री के जो कल्चर के जो लोग थे वो साथ आए, और यहाँ पर बहुत सारे वो अपने लिबास में अपने जो उनका एक होता है ना। अच्छा सर, ये बताएं इसके बारे में, ये क्या है? ये मुजस्मा, बुद्धा के मुजस्मे नज़र आ रहे हैं मुझे दो, ऐसे ही है, और ये कोई गुज़रगाह थी यहाँ से? ये असल में गुज़रगाह तो थी, लेकिन एक इबादत का ना एक तरीक़ाकार था कि इसके अंदर जो है ना, ये जो बुद्धा है, इसके अंदर एक होल है। तो बुद्धा ये मन्नत मांगने के लिए या अपनी विश के लिए वो इसके अंदर उंगली रखते थे और विश मांगते थे, और फिर उसके बाद वो चले जाते थे। तो एक उनका अक़ीदा था कि हम जो भी विश करेंगे वो कबूल हो जाएगी। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये होल वाला, ये दीगर बुद्धा के मुजस्समों में भी काफ़ी जगहों पर, जैसे भमाला में है, जैसे जूलिया में है, वहाँ पर भी ये इस तरह के मुजस्समे मिलते हैं जिसमें वो होल होती है और उसमें वो अपनी उंगली रख के जो दुआ विश करते हैं, वो पूरी होती है। तो ये हो गया कि मतलब वहाँ से वो इबादत करके आए, ये गुज़रगाह इधर आए। ये एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, एक स्तूपा है, ये हौज है इसका, ये हो सकता है पानी रिस्टोर करने के लिए हो, और बहुत कोई और भी मकसद हो सकता है ये। फिर इसके साथ साथ जो है ना, ये हौज में पानी स्टोर करने के लिए ये जगह थी, क्योंकि ये जो मजहब का थोड़ा बहुत लिंक जो था ना हिंदुइज्म से भी था ना, थोड़ा थोड़ा। जी, क्योंकि एकदम खत्म नहीं हो जाता कोई चीज। तो ये जो हौज हैं, मुझे डाउट ये होता है कि चीजें ये मुझे कुछ नजर आ रही हैं, ये क्या ये उसी वक्त की है कि आज के लोगों ने ये कुछ कर दिया है इसको?
दरअसल जब इसकी मेंटेनेंस होती थी या इसका काम होता था ना, तो ये छोटे छोटे जो हौज बने हुए हैं, बहुत मुमकिन है कि इसके अंदर ये कलर घोलते होंगे। अच्छा, ये मुख्तलिफ भी कलर्स। मतलब उस दौर के हैं, हाँ, ये अभी का नहीं हुआ हुआ, ये तो इस जमाने के हैं। और ये जो पानी है, ये हो सकता है कि बहुत मुमकिन है कि ये इसके अंदर मोटर बनाते हों, बहुत मुमकिन है कि इसके अंदर वो जो चूना मट्टी मिक्स करते हैं उसके अंदर, और यहाँ से ले जाकर के देखें मेंटेनेंस होती रहती थी, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये गिरते रहते थे। लेकिन उस वक्त बड़ा एक कहते हैं सिस्टमेटिकल तरीका था, बड़े काम करने वाले भी एक्सपर्ट हुआ करते थे। तो ये जो कलर करना, क्योंकि आपको मुख्तलिफ मुजस्समों पे काले रंग का और रेड कलर के इम्प्रेशन नज़र आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे बहुत मुमकिन है कि ये जो इसको डेकोरेट करने के लिए ना, यहाँ पे हल्के फुल्के कलर जो है ना, वो यहाँ पे घोले जाते थे। अच्छा, अगेन अब आगे हम चले गए, तो हम फिर ये आगे जो मेन स्टूपा है, हाँ जी। उसकी हम दूसरी साइड पे आ गए। अब ये फिर अगेन जो नजर आ रहा है वो एक बड़ी जगह है। ये भी एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से लेके वहाँ से एंटर होते थे, जी, और यहाँ से एंटर होने के बाद ये पूरा एक अलग से एक जो ना एक पोर्शन है। ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने एक इबादत खत्म की, फिर वहाँ से मुकम्मल करने के बाद अब इधर भी आ गए। ठीक है। जैसे हम आमतौर पे होता है ना कि एक इबादत खत्म की, दूसरा तरीका, फिर यहाँ पर कोई और सिस्टम था तरीका। जैसे हमने देखा ना कि यहाँ से गुजर के उधर चले गए, उधर चले गए। तो उनकी इबादत में ये लाजमी शामिल होगा। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये देखें, ये 4 दीवारी है इसकी पूरी वहाँ जी, तक, और ये पूरा एक सेपरेट है ये जो हिस्सा ना। बिल्कुल। लेकिन वो यहाँ पर भी आपको वोटिव स्टूपा नजर आएंगे जगह जगह। अब यहाँ देखिए बड़े बड़े जो है ना रूम है, ये रूम है। ये हो सकता है कि कोई बड़े बड़े जो भिक्षु हों, उनके अपने घर हो यहाँ पर, है ना, उनके रहने की जगह हो। तो इसी तरह वहाँ पर भी एक तालाब आपको नजर आता है। मकसद यहाँ का मुझे ऐसा लगता है कि ये पानी रिस्टोर करने के लिए होता होगा। सही, जाहिर सी बात है सर, इतनी दूर से जब लोग आते होंगे तो पानी की जरूरत तो, आल्दो के वहाँ से धर्मा नदी गुजर रही है, लेकिन पानी तो यहाँ पर भी तो चाहिए होगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पर ये दिखा दूँ कि ये जो हमें पत्थर हमें नजर आता है कि ये पत्थरों को सजाकर एक कुछ बनाया गया है, तो ये एक पूरी तहजीब है, ये पूरा एक मजहब है। उस मजहब की तालीमात हैं इसमें, उस मजहब की तरबियत है इसमें। तो ये तारीख़ी लिहाज से और इल्मी लिहाज से ये ख़ित्ता, ये इलाका, ये जो जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल था। और अब हमारे लिए हम इससे क्या सबक लेते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। तो ये जो पत्थर हैं हमें नज़र आ रहे हैं, जो हमारे लिए सिर्फ पत्थर है, लेकिन किसी के लिए ये बड़ी मुतबरक चीज़ें हैं। तो इससे हमें तारीख़ और उसमें होने वाले जो उरूज व ज़वाल की दास्तानें हैं वो हमें यहाँ से मिलती हैं। टूरिज़्म गाइड बुक की ये कोशिश है कि हम अपने मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में हम तारीख़ और उसमें छुपी हकीकतें और उसमें छुपे तालीम और तरबियत के मौक़े हम अपने देखने वालों तक पहुँचाएँ, और इसमें से जो टूरिज़्म के मौक़े बनते हैं वो भी हम पूरी दुनिया को बता सकें। तो यहाँ तक हम इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में हम किसी और जगह पर आपसे इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। Thank you.